Section I. First question, which will form the ideal solution? Again information based है, पता ही होना चाहिए, बेंजीन प्लस टोलिन. फोर्थ ऑप्शन, पहला वाला बनाएगा नेगेटिव डेविएशन, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन, तीसरा पॉजिटिव डेविएशन. नहीं, एक मिनट, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, तो वेपर प्रेशर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पहला पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया नेगेटिव. हाँ, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ आइडियल सॉल्यूशन. लेक्चर नोट्स में लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो ना, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 6 from Samiksha and Lokesha. Consider a binary mixture of volatile liquid. If at XA equal to 0.4, the vapor pressure of the solution is 580. सर वहाँ पे 600 होगा. 600. Answer is 1, chloroform plus acetone. The vapor pressure expected from Raoult's law is 600 and the vapor pressure given in the question is 500. Sorry, 580. So 580 is less than expected from Raoult's law, negative deviation होगा. हमें ये देखना है नेगेटिव डेविएशन का कौन सा एग्जांपल. 6 का क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ नेगेटिव डेविएशन. क्लियर लोकेशा, समीक्षा? Yes sir. Yes, sir. Then question number 5 from Soloni Snehal. The vapor pressure of a solution of two liquid this and this is found to be 100 mm. Similar question है, exactly same question है जैसा 6 था. तुम्हें वेपर प्रेशर रॉल्स लॉस निकालना है, हमें दे रखा है 100. रॉल्स लॉस आएगा 18 to 0.4. So 18 to 0.4 is 32 plus 120 into 0.6. So 72 plus 32. तो ये वेपर प्रेशर आएगा 104. रॉल्स लॉस है, हमारा दे रखा है वेपर प्रेशर 100. So our vapor pressure, actual vapor pressure is less than expected from Raoult's law, negative deviation. Third option. Is that okay? Yes sir. Next, question number 7. A maxima or minima obtained in the temperature composition curve of a mixture of a two liquid indicates maxima or minima in the temperature composition curve. Azeotrope. याद है azeotrope में कुछ ऐसा maxima और minima आया था, हम ऊपर जाते हैं या फिर कुछ नेगेटिव डेविएशन है तो नीचे आते हैं. This is minima, this is maxima, azeotropic mixture. Is that okay? Last heading.
Next question after question number 7, question number 8. When KCl dissolved in water, assume endothermic dissociation. Endothermic means energy get absorbed. यदि एनर्जी absorb होगी तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, या तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से कुछ होगा. अब रही बात डेल्टा जी और डेल्टा एस, तो आयुष डेल्टा जी और डेल्टा एस का साइन तो हमें हमेशा से ही पता है. डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. सिर्फ यहाँ पे एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट देखना था हमें. क्लियर इट क्वेश्चन? Yes, sir. Then 11. 11 हो गया question. 11. An azeotropic mixture of two liquid boils at lower temperature than either of them when. So minimum boiling azeotrope की बात कर रहे हैं. Boiling point लिखा भी है लेक्चर नोट्स में तुमने ना, मैंने स्क्रीन शेयर करके लिखवाया भी था. When boiling point is less than both the component, it will be a boiling point is less, vapor pressure is more. So vapor pressure is more means positive deviation का case है. It shows positive deviation from Raoult's law. Fourth option is correct for 11. Then question number 12. The azeotrope mixture of water and HCl boils at this temperature. When the mixture is distilled, it is possible to obtain. देखो, distill करना means basically हमें उन्हें vaporize करना. Vapors, if we have two substances A and B, clear, दोनों एक दूसरे में mix है A and B. A और B में A ज्यादा volatile है, जब तुम इसे vaporize करोगे A का fraction बढ़ जाएगा, तुम इसे condense कर दोगे. अब हमें A का fraction ज्यादा मिल रहा है, वापस से vaporize किया, then condense किया third vessel में, fraction of A increases, क्योंकि उसका जो ratio liquid में था initially, अब उससे ज्यादा vapor में होगा. मुझे बताओ, क्या azeotropic में हमने ये property लिखी थी, they cannot be separate out using distillation process. The fraction in the liquid phase and the fraction in the vapor phase will be same. जब हम उन्हें वेपराइज करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज ही नहीं होगा. यदि फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा तो हम उन्हें कभी सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे. इज दैट ओके लोकेशा सलोनी? 12th क्वेश्चन. तो ये तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी एजेट्रोप की, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. सो आंसर विल बी 4. क्लियर? Is that okay? चले हम आगे. Yes, sir. ये कुछ बच्चे हैं रफ मिनिमम 10 मिनट्स इन्होंने लेट ज्वाइन किया है. तन्मय, दीपी 10 मिनट्स, काजल 12-13 मिनट्स, बाद में ओमकार, तेजस 20 मिनट्स लेट ज्वाइन कर रहे हो. 8 बजे के लेक्चर में 8:20 पे ज्वाइन कर रहे हो. क्या कर रहे हो तुम लोग? मतलब होगा ये कि लेक्चर यदि स्टार्ट कुछ भी थ्योरी पार्ट करा दिया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है. थोड़ा टाइमली ज्वाइन करो, मतलब 8 का 8:05 समझ में आता है. 8:04 पे तो चलो मैंने लिंक शेयर किया, इसके 2-3-4 मिनट तक समझ में आता है, बट थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन करो. ओके. सो एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 2 में से कुछ होमवर्क था. एक्सरसाइज 2 होमवर्क डिस्कस कर लें पहले. अब हम exercise 2 part 1 doubts. Exercise 2 part 1 doubts. मैं अगेन रिपीट करते कर रहा हूँ, पहले भी किया है. 53 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग लेक्चर्स और ऑन एवरेज मुझसे 6 या 8 या 10 बच्चे से ज्यादा डाउट नहीं पूछते हैं. आई डोंट नो कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बट बहुत हेक्टिक बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं बनाया जा रहा है तुम्हारा. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है. तुम्हें एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है. लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर के बाद लेक्चर नोट्स पढ़ना है. और यदि तुम्हें 2 दिन में पूरे वीक में 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर में तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चंस दिए गए, क्या हम एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते पूरे वीक में?
मतलब उतना किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज तुम 30 मिनट्स लेक्चर नोट्स पढ़ोगे, 30 मिनट्स होमवर्क करोगे, मतलब तुम्हारा होमवर्क तो एटलीस्ट हो जाए। 1 घंटे तुम्हें एक सब्जेक्ट को देना है आफ्टर लेक्चर, फिर तुम उससे ज्यादा रिवीजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक बेसिक सी चीज जो है उतना करते जाओ सब। कीप इट वेरी सिंपल, लेक्चर अटेंड करना है, सारे लेक्चर के बाद लेक्चर नोट्स पढ़ना है और फिर होमवर्क करना है। या और यदि ये तुम अभी से स्टार्टिंग से 12th में फॉलो नहीं करोगे, एंड में जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ना हो हमें फिर फील हो कि हमने पूरा 1 साल, पूरे 2 साल दे दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कुछ गेन किया नहीं किया, क्या। अगेन ये जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट। हमारा काम 40% है, 40% हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, चीजें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे, रिवीजन के टाइम पे रिवीजन होगा आफ्टर 12 क्लियर। बट आफ्टर 12 11 के कंटिन्यूएशन, 11 का जो रिवीजन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, तो जितना काम हमारा है उतना तो हम करेंगे ही। बट कहीं ना कहीं 60% तुम्हारा ही काम, तुम्हारा ही करियर है। तो एकदम ऐसा मत करो कि कुछ नहीं कर रहे, तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जा रहा है। इवन एक्सरसाइज 1 मिनट कर ही लिया है कि हम पूरा क्लास में करेंगे, एक्सरसाइज 1 पूरा क्लास में करेंगे, 2 और 3 में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, उतना करते चलो। और रही बात डीपीपी की, डीपीपी मैं ये सोच रहा हूँ, डीपीपी हर चैप्टर में 5 6 7 डीपीपीज हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं एक एक चैप्टर के डीपीपी सॉल्व करूंगा, तो हर चैप्टर के 50 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे ड्यूरिंग रिवीजन, क्लियर। और हमारा सिलेबस काफी एडवांस में खत्म हो जाता है, क्लियर। हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था मार्च में, मान लो तो ऑन एन एवरेज, तो हमारा सिलेबस ये जो हमने 11th स्टैंडर्ड इफेक्टिवली मई जून में स्टार्ट किया था, तो हमारा सिलेबस फेब में खत्म हो गया। अभी हमारा सिलेबस दिवाली तक इजीली खत्म होगा, अच्छे से खत्म होगा, एंड वी विल हैव इनफ टाइम आफ्टर दिवाली फॉर द रिवीजन आल्सो। बट रिवीजन कब काम का है, जब एक बार हम अच्छे से कर रहे हैं, तो करते चलो थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोरेंस में जा रहे हैं, हम कुछ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नो डाउट सिचुएशन इज नॉट इजी फॉर एनीवन, घर पे बैठ के वो बोर्डम झेलना मतलब नहीं किसी के लिए इजी, बट अगेन है सभी के साथ सेम सिचुएशन। जो इस सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर गया वो डेफिनेटली आगे निकल जाएगा। ओके, व्हाट एंड 12th स्टैंडर्ड विल क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं बताता हूँ, संडे को एक टेस्ट हुआ था ओल्ड जेपी का, ओल्ड एमपी का। उस टेस्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, वेव ने वो टेस्ट नहीं किया था, और वेव के अलावा जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, जयंत शिरोड़े करके, जिसने 12th में ज्वाइन किया, मतलब 11th में उसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, डायरेक्ट 12th में ज्वाइन किया। और 12th में ज्वाइन करके बहुत सिंसियर बच्चा है, मतलब इवन पूरा 12th भी उसका ऐसा ऑनलाइन ही चला है। जब भी उसने ज्वाइन किया, जब से ऑनलाइन हो गया, पूरा उसका 12th ऑनलाइन चला। ऑनलाइन चलने के बाद भी मतलब उसके मार्क्स हाईएस्ट आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, और हाईएस्ट आ रहे हैं टेस्ट। तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक 12th में उसने इतना डिफरेंस क्रिएट किया, सिर्फ 12th में उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारे लेक्चर्स अटेंड किए। और कुछ बच्चे जो 11 से लेके स्टार्टिंग से लेके कर रहे हैं, बट कर ही नहीं रहे हैं, बेसिकली सिर्फ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनका रिजल्ट उनसे अच्छा नहीं। तो क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा बहुत मैटर कर जाता है कि हम प्रैक्टिस करते चले। जब तक तुम नहीं करोगे, खुद से तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एग्जाम। ओके, मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पर क्वेश्चन। सर 22 नहीं है। सलोनी, क्वेश्चन नंबर 3 पहले डिस्कस नहीं हुआ था, मुझे याद है मैंने कहीं तक तो डिस्कस कर रखा है एक्सरसाइज 2 पार्ट वो 1। सर वो बाय मिस्टेक हो गया, 3rd और 10th कैंसिल करना है। चलो इतने ही डाउट्स आए हैं।
Question number 13. Why gram of a non-volatile organic substance of molecular mass m is dissolved into 50 gram of benzene? Molar elevation constant of benzene is Kb, elevation in its boiling point. Okay. Question number 13. 13 question में delta TB that we need to find out. Delta TB equal to Kb into molality. Molality होगा number of moles of solid upon weight of solvent in kg. Y gram of solid with molar mass m. So number of moles होंगे weight by molar weight. Here upon weight of solvent in kg 0.25. Y by m हो गया हमारा क्या? Number of moles of solid और 0.25 हो गया weight of solvent in kg 250 ग्राम 0.25 kg. 0.25 को ओवर फिर सिंपल सा कैलकुलेशन है इसके बाद. 17 and 18 both questions are good questions. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी कैलकुलेशन है सब कुछ है, बट अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है. Primerization. The word primerization in 17 is 3 units are merging into 1 unit. Initial 1 ले लो, final initial 0, final 1 minus beta, where beta is degree of association. So 3 can give 1, 1 can give 1 by 3. यहाँ पे बीटा रेट क्या है, बीटा बाई 3 बन गया. ये हमें समझ में आता है. कैसे लिखा है, याद है हमने n na is giving n 1 minus beta, बीटा बाई n लिखा था for association want of factor. यहाँ पे 3 है तो बीटा बाई 3. Is that okay? Yes, sir. 17? Yes, Oh, sir. Okay, want of factor this plus this upon initial. So 1 minus 2 beta by 3 want of factor आ गया. अब ये जो सॉल्यूशन है ये है 0.1 मोलार. आयोटा Kb 0.1 मोलार. इसका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्यूशन जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन डिसोसिएटिव एसोसिएटिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम है. दो बॉइलिंग पॉइंट को इक्वेट किया, इसका want of factor 1, मोलारिटी तरीके 0.08. बस अब बीटा के लिए सॉल्व कर लेना. Kb will cancel out. One equation one variable. जब तुम बीटा के लिए सॉल्व करोगे बीटा आएगा 0.3 आएगी 30%. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 18 क्वेश्चन में क्या अच्छा है, 18 क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक टेम्परेचर दे रखा है 350 एंड दैट इज गिवन बॉइलिंग पॉइंट. जो टेम्परेचर दिया है वही बॉइलिंग पॉइंट है. महक मुझे ये बता, if temperature given is boiling point, then what should be the pressure of the solution at this temperature? क्या होगा महक? Pressure will be आवाज नहीं आई. कितना होगा महक प्रेशर?
बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure, it is the temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. तो इनडायरेक्टली तुम्हें 350 केल्विन दे रखा है, वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है, तुम्हें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है इनडायरेक्टली 760. Now in this question T naught is given, PV naught is given, XA को डिटरमाइन करना है. हो जाएगा अभी सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 28 को सबसे पहले रीड किया. When we read this question, P naught PV naught is given in the question, XA is given in the question, मतलब XA XB हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और टोटल प्रेशर भी दे रखा है, और पूछा है कि इसमें डेल्टा एच डेल्टा वी क्या होगा. मींस वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल. पहले तो रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर निकालो, और फिर कंपेयर करो जो हमें वेपर प्रेशर दे रखा है सॉल्यूशन का, वो ज्यादा है या कम. उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन डिसाइड करना है. सो P टोटल 300.08, 800.92. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, where is my calculator? ये लो. Three hundred into 0.08 plus 800 into 0.92. ये आ रहा है 760. 760 means 180 m. The actual vapor pressure of solution is given 0.95 atm. So जो actual vapor pressure है 0.95, वो हमारा वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से जो आ रहा है उससे कम है. यदि वेपर प्रेशर कम है रॉल्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड था, नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0. Is that okay? Saloni, 20th Yes, question. Yes, sir. रुद्राक्ष का था. Yes, sir. Next है 23. The solubility of N2 in water exposed to the atmosphere when the partial pressure 593 is this. Solubility is directly proportional to partial pressure. Henry's law. P1 by P2 equal to S1 by S2. क्या वहां पे हमने लिखा था पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. वो एक ही बात है, जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, जितने ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होंगे, उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी. ये भी मोल्स पर लीटर ही होता है, सिमिलर मैंने डिफाइन होता है. P1 by P2 is S1 by S2. हम रखें 593 उसका सॉलिबिलिटी दे रखा है, 760 उसकी सॉलिबिलिटी पूछा है. अब हो जाएगा सॉल्व ये. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. चलो इसके बाद एक्सरसाइज थी पार्ट 1 दिया गया था, राइट? Doubts of exercise 3 part 1.
ओके, ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं डाउट्स में। क्वेश्चन नंबर 10, concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass। ये क्वेश्चन आई थिंक 3 बार पहले कहीं ना कहीं आ चुका है, इसको मैं 2 से 3 बार पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, कर देता हूँ फिर से। Finally, we have to make 1 liter 0.1 molar H2SO4। So 1 liter 0.1 molar H2SO4, moles of H2SO4, volume into molarity कर दिया हमने। या अब ये कहाँ से बनाना है? एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 98% H2SO4 है, and we have to find out volume of that H2SO4 required। तो assume करो उसका वॉल्यूम V required है, जो भी सॉल्यूशन इनिशियल है। So volume of solution into density of solution, डेंसिटी दे रखा है 1.8, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में 98% H2SO4 present। So if you take 98% of this will be weight of H2SO4, volume of solution into density of solution, weight of solution into percentage of H2SO4, weight of H2SO4 आ गया upon molecular weight of H2SO4। So moles of H2SO4 initially required, finally present। अब सॉल्व कर लोगे क्या V के लिए? Yes, sir. मतलब ये कंसंट्रेशन कन्वर्जन पे बेस्ड था। कंसंट्रेशन कन्वर्जन पे जहां भी क्वेश्चन आता है, थॉट प्रोसेसिंग थोड़ा सा सही होना चाहिए, एक ही स्टेप में आंसर हम लिख सकते हैं। कैसे रिलेट करना है दो यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 किसका राउट था? हर्षल। 11 क्वेश्चन में हर्षल में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, केवी का वैल्यू दिया है। weight of solid is given 5 gram Na2SO4, 5 upon molar weight, number of moles of H2SO4, Na2SO4 upon weight of solvent in kg। 45 ग्राम को kg में कन्वर्ट किया है, मोलालिटी kV, want of factor कैलकुलेट करना है। डेल्टा TF क्वेश्चन में दे रखा है, हो जाएगा I के लिए सॉल्व। हर्षल? Yes, sir. हो जाएगा sir. क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सलोनी एंड महक।
For dissociation, want of factor is greater than 1. For association, want of factor is less than 1. Want of factor होता है molecules after the change upon molecules before the change. Dissociation में ज्यादा बड़े ब्रेक होंगे, ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा, greater than 1. Association में combine होंगे, नंबर कम हो जाएगा, less than 1. Is that okay? Yes, sir. भी लिखा था want of factor dissociation association के लिए क्या क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 14, ये डाउट था जानवी का. Pi equal to CRT, osmotic pressure is given in the question. Again, जैसे molality लिखा है, यहाँ पे molarity लिखना है. Weight of solid is also given. Weight of solid upon molar weight, number of moles of solid upon volume of solution in liter. 200 ml को 0.2 लीटर में कन्वर्ट किया. R का वैल्यू atm लीटर में, टेम्परेचर केल्विन. कैपिटल M के लिए सॉल्व करना है. आया जानवी समझ में? Yes, sir. Then after question number 14, question number 17, हमें पूछा है इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यदि हम बात करें, जितने भी सॉलिड पार्टिकल यदि उनका नंबर ज्यादा, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा. बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटिव lowering of vapor pressure and depression in freezing point. Greater the magnitude of colligative property, lesser will be freezing point. Okay, depress हो रहा है, lesser will be vapor pressure. तो हमें ज्यादा vapor pressure या ज्यादा freezing point बताना है, तो colligative property का magnitude कम करना होगा. मैंने डिटेल में लिखा है, delta TF is more, I is more. क्लियर? जिसका want of factor ज्यादा, यदि same molality दे रखा है, तो delta TF ज्यादा, but TF is less. यदि TF ज्यादा चाहिए तो डेल्टा TF कम, want of factor is minimum. ये एक ऐसा ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में जिसका want of factor 1 है, which is minimum. Is that okay? Harshal 17 clear? सर उसका ऑप्शन 3 दिया आंसर. Al2SO4 sir. the whole. सर उसमें डिप्रेशन पूछा है. अच्छा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर किया. उन्होंने तो फिर डेल्टा TF ही पूछा है, तो फिर जितना ज्यादा I उतना ज्यादा डेल्टा TF. तो want of factor is maximum for the third option, there is 5. KCl का want of factor 2, ग्लूकोज का 1, एल्युमिनियम सल्फेट का 5, K2SO4 का 3. उन्होंने डेल्टा TF ही पूछा है. मैंने पढ़ने में थोड़ा गलत किया उसे, मैंने TF को एज्यूम करके सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो डेल्टा TF is more if I is more. Question number 23 and 24 both are theoretical. 23rd question, if molality of the dilute solution is doubled, molality को double किया, then the value of molar depression constant. Molar depression constant वो तो constant है, वो क्यों change होगा? Kf, Kb that depends on the nature of solvent. They do not depends on the number of moles of solid particles. वो solid particles के moles पर depend नहीं करेंगे, वो constant है. वो सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं. आंसर इज अनचेंज्ड. क्लियर? हमने बोला डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज Kf, और हम बोल रहे हैं कि वो भी मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस बात का? 24, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोगुलेशन पावर ऑफ आयन डिपेंड्स. ये पता नहीं इसने क्यों दे दिया है, ये है सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन. This question is not from solution, तो अभी के लिए छोड़ सकते हो 24. होमवर्क में है एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट. 24 क्वेश्चन है, पार्ट 3 कंप्लीट, 23 क्वेश्चन है. स्पेशली पार्ट 3 जो जेईई मेंस के क्वेश्चन से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है. ये तुमने अब तक सब कुछ अच्छे से किया होगा, डाउट्स क्लियर करवाए होंगे, तो फिर तुम्हारे लिए वो इजी रहेगा. और डायरेक्ट तुम पार्ट 3 को करने जाओगे बिना अपने डाउट्स क्लियर करवाए, डाउट कब क्लियर नहीं होंगे जब तुमने सॉल्व नहीं किया हो, तो मुश्किल लगेगा उसको. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3 दोनों पार्ट डिस्कस करूंगा.
2 and 3 बचा हुआ. Is that okay? Yes, sir. Sure. So now we'll start with the next chapter. डबल सॉल्ट फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया पोटेशियम, उनकी आइडेंटिटी सॉलिड फॉर्म में सेम थी, बट इन द सॉल्यूशन फॉर्म वो डिसोसिएट हो गए आयंस. हमें हर आयंस की इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलेगी. One more example which is given in NCERT, more salt. Ammonium ferrous sulfate dot 6H2. Ammonium sulfate, ferrous sulfate dot 6H2. ये दोनों फॉर्मूला में ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, इसलिए पता होना चाहिए. पोटेशियम एंड मोर सॉल्ट. वाटर में डिसॉल्व करोगे, अमोनियम आयन अलग, Fe2+ अलग, सल्फेट अलग. तो सॉलिड में हमने आइडेंटिटी रिटेन की बट सॉल्यूशन में यूज कर दी.
Okay. Complex salt, they do not lose their identity completely in the solution or liquid form. हमने दो salt को stoichiometric ratio में combine किया 1:4 के ratio में. They will form such kind of addition compound which exist in this manner. FeCN2.4 Kc. ये इस manner में exist करेंगे and when you dissolve them in water, when you dissolve them in a liquid solution, they will dissociate only in this form K plus and FeCN6 minus. ये जो Cn minus है, that will not dissociate. They do not dissociate completely. Yes, they can dissociate. जो बाहर वाला part है वो dissociate होगा, but जो square bracket complex वाला part है वो dissociate नहीं. समझ में आया? Last केस में हमें सारे ions मिल रहे थे. यहाँ पे अब हमें सिर्फ K plus अलग मिल रहा है, बाकी we are not getting Fe2 plus and Cn minus. क्या इतना क्लियर है? यश, देवकी, गौरी, काजल, कृष्णा. Yes, sir. Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स लिख लो जो हमने डिस्कस किए थे. अगेन ये तीनों एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं. अब एनसीईआरटी अगेन मैं 101% कवर पूरा करने वाला हूं यहाँ पर. एट द सेम टाइम उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन भी तुम्हें मिलने वाली है, नीट के लिए यूजफुल है. सो एनसीईआरटी यू डोंट नीड टू रिफर फॉर दिस चैप्टर. मतलब सच इसके लिए रिफर करने की जरूरत नहीं है. तो मैं एनसीईआरटी रिफर करने को बोला जाएगा स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए. वो भी लेक्चर नोट्स में यदि बनाया जाएगा तो पूरा लिखाया जाएगा. ओके. Example of complex salt. Hemoglobin, ब्रैकेट में लिख लेना आयरन कॉम्प्लेक्स. Hemoglobin Fe complex. Chlorophyll magnesium complex. Vitamin B12 cobalt complex. Hemoglobin iron, chlorophyll magnesium, vitamin B12 cobalt. संडे को टेस्ट है तुम्हारा? नो सर. लास्ट संडे को था No, टेस्ट? sir. No, sir. चलो, तो मैं तो अपने पार्ट का टेस्ट लूंगा ही, लिक्विड सॉल्यूशन कंप्लीट. ठीक है, और भी सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट लिक्विड सॉल्यूशन का तो है तुम्हारा. संडे, कमिंग संडे टेस्ट विल बी देयर ऑन लिक्विड सॉल्यूशन. किस पोर्टल पे होगा वो बता दिया जाएगा. होगा आफ्टरनून में. इज दैट ओके? पोर्टल चेंज हो गई है क्या सर? पोर्टल किस पोर्टल से कंपेयर कर रहे हो तुम? यदि मेगा एग्जाम से कंपेयर कर रहे हो तो मेगा एग्जाम चेंज हो गया है. तुम्हें बता दिया जाएगा, मतलब सिमिलर प्रोसेस ही रहेगा उसका भी. और तुमने शायद दिया है कि नए पोर्टल पे ऑनलाइन उस पर? No, No, sir. sir. अभी तक हाँ, तो तुम्हें बता दिया जाएगा. काफी सिंपल सा प्रोसेस है, सिमिलर टाइप का ही प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं. Okay, so I'm ending session today.